Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's class, we are going to study a very interesting concept that is scalar product, or more generally we call it dot product, and it is used in physics and as well as in mathematics, and it's a very interesting concept. And where do we use the scalar product or the dot product? Generally, in mathematics, what we say that to find out the dot product of two vectors. And in physics, we use the dot product concept to find out the quantities like work done, where the work done is the dot product of force and displacement vector, and some other concepts like the power is also somehow calculated by dot product. We can say that the dot product of force and velocity. And there are many more physical quantities which we obtain through the scalar product. Just like we can say the kinetic energy we can find out by dot product, and we can say some other physical quantities also can be determined by scalar product. So we'll start with the dot product by taking two vectors, like how the dot product is uh, calculated. देखो डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू वेक्टर्स. ठीक है, let's say these two vectors are a vector and b vector. ठीक है, अब इसमें अज्यूम ये करते हैं कि देर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा. ठीक है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is denoted by A and magnitude of B vector is denoted by B. तब इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट होगा इनका A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा. ठीक है, तो जहां पे cos थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड A वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ we can say the mode of A vector is the magnitude of A vector, and mode of B vector is the magnitude of B vector. That's how we can find out the dot product of two vectors where the magnitudes and the angles are given. Okay. Uh, देखो अब इसमें आ गया, it can be solved further. A vector dot B vector will be written as AB cos theta, or it may be written as BA cos theta also. That doesn't affect the calculations. और डॉट प्रोडक्ट में एक रूल होता है कि वी कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. सो दिस this rule is obeyed by the dot. That means we can exchange the positions of vectors a vector and b vector, and that will not going to affect the result, or we can say that dot product or the scalar product. और डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट हम यूज भी कर सकते हैं टू गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जहाँ पे दो वेक्टर दिए रहते हैं और हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है. तो बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट मेथड वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम आल्सो. ओके, तो उस केस में क्या होगा, हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा. लेट्स से वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर इन 3D. तो वेक्टर अगर 3D में होगा तो उसको कैसे स्टडी करेंगे? सो इन 3D we take three axes. Okay, and
We draw it them like x axis, y axis, and z axis. Okay, so that's how we denote the coordinate system. Let's say this is x, this is y, and this is z. And the unit vectors along the x-axis is I cap, and along the y-axis is j cap, and along the z-axis is k cap. And their negative axis will have their negative unit vectors. Just like we can say the x dash axis, which is generally named as the negative x-axis, will have minus I cap direction, or we can say the unit vector along the direction of x dash. And similarly, the negative y-axis will also have minus of j. We can say that just opposite to the positive vectors. So it is z dash axis, and we write its direction vector, or we can say the unit vector along the direction of z dash direction or z dash axis will be minus kk. अब इनका भी डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है. क्या रूल होता है? Since the angles between these axes x, y, and z, it is 90 degree, and that's why we call them that they are mutually perpendicular to each other. That's why we can say that their dot product. We can say the dot products between these axes will give us the resultant as zero, and we'll see that how they gives the we can say they give us the dot product as zero. कैसे देते हैं देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई केप एंड जे केप, तो इनमें क्या होगा? डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप, एंड कोस थीटा. आई केप डॉट जे केप इक्वल्स टू, सिंस आई केप इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा वन. अंडरस्टूड? सिमिलरली जे केप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन होगा. और जैसा आप देख सकते हैं कि आई केप और जे केप के बीच में जो एंगल है, सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. वेरी सिंपल. तो 90 डिग्री अगर हम रख देते हैं, तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है. वन इंटू वन. कोस 90 डिग्री कितना होता है? वी कैन से कोसाइन 90 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है. सो दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई केप एंड जे केप विल बी जीरो. ठीक है. So we can say that the dot product between the unit vectors along the, we can say, the coordinate axis are zero. अब सिमिलरली हम बोल सकते हैं, क्योंकि सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम ये वो बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, तो आई के डॉट जे केप अगर जीरो है, तो जे केप डॉट आई केप भी जीरो होगा, बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप विल बी जे कैप डॉट आई कैप. तो एक जीरो है, दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. और सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली फॉर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जीरो है, तो जे कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जीरो होगा. जे कैप डॉट केप कैप इक्वल्स टू जीरो होगा, और के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू भी जीरो होगा. और कौन सा बच गया? के कैप डॉट आई कैप. ओके. या फिर हम बोल सकते हैं आई कैप डॉट के कैप
इक्वल टू 0 और के केप डॉट आई केप इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हो गया जब हम दो डिफरेंट वी कैन से द कोऑर्डिनेट एक्सिस यूनिट वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, तब इनमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। What will happen if we find out the dot product of the vector itself? We can say the dot product of the vector with the another vector which is itself. उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। चलिए करके देखते हैं। लेट से हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं आई केप और आई केप का, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप इंटू कोस थीटा। आई कैप डॉट आई कैप विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है, 1 होता है। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा, 1 होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें एंगल कितना होगा। देखो सेम वेक्टर का उसी के साथ एंगल अगर हम मेजर करेंगे तो वो 0 डिग्री एंगल माना जाएगा। इन वेक्टर एल्जेब्रा द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, उनको हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि पैरेलल वेक्टर में एंगल 0। अब अगर एंगल 0 है तो कोसाइन 0 आ गया अपने पास। आई कैप डॉट आई कैप इज 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, और आपके पास कोस 0 भी क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 1 इज अगेन इट इज 1। सो आई कैप डॉट आई कैप इज 1। वेरी सिंपल। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि आई कैप अगर आई कैप डॉट आई कैप 1 है तो जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, वो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, और सिमिलरली के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे डॉट प्रोडक्ट जब हमारे पास जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में ना दिया रहे के अपने को, वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा। लाइक लेट्स राइट दैट so it will be more convenient for you to understand. Let's say इस केस में अपने पास एंगल नहीं है, एंगल हमें फाइंड आउट। ए वेक्टर इज ए एक्स आई के, ठीक है, प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। और दूसरा कोई वेक्टर ले लें, लेट्स से बी वेक्टर, इट इज बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो इस सिचुएशन में हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ए वेक्टर का, अगेन फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बी वेक्टर का, और कोस थीटा हमें फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। इस मेथड, ये मेथड स्पेशली उसी के लिए हम यूज करते हैं कि कोस थीटा निकाल करके हम उसका, उनके बीच का एंगल निकाल सके, द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑब्वियसली we all of know that the magnitude of a vector will be ax square plus ay square plus az square. This will be the magnitude of a vector. Or similarly, magnitude of b vector will also be b vector
The magnitude of B vector is the square of bx square plus by square plus bz square. मोस्टली जो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि इनमें जब वो स्क्वायर करते हैं, ये कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। आपको इनके साथ आई केप जे केप के केप नहीं लेना है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, लेट्स से ए वेक्टर इज आई केप प्लस 2 j केप माइनस 3 k केप। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कुछ बच्चे इसमें जो साइन रहता है वो स्क्वायर के बाहर ले लेते हैं। ओके, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको ये जो स्क्वायर हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स का, कोफिशिएंट्स का, उनके अंदर प्लस माइनस हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो ये इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे, एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये यहाँ पे आपके पास एक्स का वैल्यू 1 है और ए वाई का वैल्यू 2 है और ए जेड का वैल्यू कितना है, -3 है। अब आपको, अगर आप ये पहले लिख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसका मैग्नीट्यूड निकालने में। नहीं तो अगर आप अ, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, तो यू मे गेट द रॉन्ग आंसर। सो इट विल बी, सिंस इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्क्वायर द ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये अपने पास इक्वेशन आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी, ए एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, ए वाई का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस ए जेड का वैल्यू कितना है, -3। तो इनका स्क्वायर हो गया। देखो, हमने फिर अगेन मैं आपको इसमें रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, इसमें जो ए एक्स है उसमें आई कैप नहीं आएगा, बिकॉज ए एक्स इज द कोफिशिएंट that is multiplied with the direction vectors of, we can say the direction vector of x-axis. सिमिलरली ए वाई है वो उस पे, ये अगर हम सीधी बात करें तो ये उसमें अगर जैसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितना पोर्शन वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर है, जितना पोर्शन वो कवर करता है एक्स एक्सिस का वो होता है ए एक्स, जितना पोर्शन वो वाई एक्सिस का कवर करता है वो होता है ए वाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एज ए एक्स कोमा ए वाई। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज। तो 3D में क्या हो जाता है, अपने पास एक और एक्सिस आ जाती है जिसमें अ, हम ए जेड को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स ए जेड मीन्स, ए जेड का मतलब होता है कि आपकी जेड एक्सिस जो है उस पे कितना वैल्यू वो उसमें अपटेन कर रहा है, दैट इज ए जेड। और 3D, why do we study 3D? 3D हम स्टडी करते हैं because we can say that if you want to find out the, we can say the position of any flying bee, or we can say the position of any satellite, position of any rocket or aeroplane, that means the things which are present in the 3D, to get the position of them. That means with time, if they are, if we can say their all three coordinates are changing, so that's why we study 3D. Okay, well enough. Now, the magnitude of a vector is 1 + 4 + 9। तो कितना है आपके पास, इट इज √40। इस तरीके से हम, अगर अपने पास कोई दूसरा भी वेक्टर दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा फिर वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, स्केलर, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं।
both are same. A vector dot B vector, अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए आप, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और ये है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के. Now, if it is the dot product, so one by the using, we can say the distribution law, we can uh, we can get the dot product. First of all, what I'm going to do is I'm going to multiply ax I cap with the next vector, which is bx I cap plus byj cap plus bz k. Now plus क्या होगा अपने पास, ए वाई जे के डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के. नेक्स्ट क्या होगा, ए वाई हो गया, अब होगा ए जेड के डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के. अब इनका वन बाय वन आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर बताएगा. नाउ इट इज ए एक्स डॉट बी एक्स आई के डॉट आई के प्लस ए एक्स बी वाई आई के डॉट जे के प्लस ए एक्स बी जेड, और आपके पास क्या आ गया इसमें डॉट प्रोडक्ट में, आई कैप डॉट के प्लस सेकंड स्टेप करेंगे तो क्या होगा, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के प्लस, अब थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड स्टेप, इट इज ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप. अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सेम वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू वन होगा. आई कैप डॉट जे कैप है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा. सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा. जे कैप डॉट आई कैप है, ये भी हमें जीरो वैल्यू देगा. जे कैप डॉट जे कैप है, ये हमें सिमिलर वेक्टर है, सेम वेक्टर, सॉरी सेम वेक्टर है, तो हमें क्या देगा, वन देगा. ये कितना देगा, जीरो वैल्यू देगा. के कैप डॉट आई कैप, इट इज ऑल्सो गोइंग टू अस द वैल्यू जीरो. के कैप डॉट जे कैप भी जीरो देगा, और के कैप डॉट के कैप सेम वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये कितनी वैल्यू देगा, वन. सो दैट्स व्हाई वी विल गेट द इक्वेशन एज ए एक्स बी एक्स, इसमें से ए एक्स बी एक्स बस बचा है, बाकी सब जीरो हो गया. सेकंड में से कौन सा बचा है, ए वाई बी वाई प्लस, थर्ड में से लास्ट बस बचा है, दैट इज ए जेड बी जेड. And that's why we get the dot product of two vectors as a vector dot b vector equals to ax bx plus ay by plus az bz. Okay. It is a very important equation that we use. Okay.
अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसमें और अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी अच्छे से। ओके, लेट्स अज्यूम ए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल between the given two vectors, and vectors are given as a vector equals to 3ik plus 4jk plus 5kk। और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर इक्वल्स टू 4ik माइनस 3jk प्लस 5kk। ठीक है। ओके, नाउ इन सॉल्यूशन what we have to do, we have to do the dot product to get the angle। दूसरा मेथड भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम निकाल सकते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट हम बोल देते हैं उसको, उससे भी निकाल सकते हैं, बट सिंस इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी स्केलर प्रोडक्ट ऑन। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना हुआ? इट इज 9 plus 16 plus 25, and it will give us the magnitude of a vector as square root 50। and magnitude of b vector कितना होगा? it will be 4 square, दूसरा कंपोनेंट क्या है? by, it is -3, so -3 square plus next component is 5, so it is 5 square। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया? द इक्वेशन इज b vector, magnitude of b vector is 16 plus 9 plus 25, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 50। ओके, अच्छा। नाउ वी गोट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स a vector and b vector, that is same स्क्वायर रूट 50। अब हमें एंगल निकालने के लिए एक और चीज चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? जस्ट अभी इक्वेशन डिराइव किया था। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा अपने पास? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें वैल्यूज क्या है, कि तो एक्स आई कैप है, ये ए वाई जे कैप है, प्लस ए जेड के कैप है, और ये क्या होगा? बी एक्स आई कैप है, ये बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, वेयर एक्स का वैल्यू कितना है? 3 है, ए वाई का कितना है? 4 है, और ए जेड का वैल्यू कितना है? 5। बी एक्स का कितना है? 4 है, बी वाई का कितना है? -3 है, और बी जेड का कितना है? 5। ठीक है, आप उसमें ऊपर कंपेयर करके भी देख सकते हैं। ओके, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने में। वेरी वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट विल बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ए एक्स इंटू बी एक्स, इट इज 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 5। तो आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 इंटू
3 is 12. 4 into minus 3 is minus of 12, plus 5 into 5 is 25. So 12 minus 12 is cancelled. So it is 25. That means A vector dot B vector is 25. ठीक है. हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि the scalar product of any two vectors will give us a scalar quantity. ठीक है. उसमें आप वेक्टर लिखने की गलती कभी नहीं मत करना. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें वेक्टर लिख देते हैं. जैसे इसमें 3 into 4 तो कर दिया यहाँ तक, लेकिन इसमें आई कैप भी लगा देंगे. दैट इज मोस्ट इरिटेटिंग थिंग वी कैन से वन कैन. तो आपको जस्ट पता चल गया है कि आप डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी. आप उसमें वेक्टर नहीं लगा सकते. सो द पॉइंट इज you will always get a scalar quantity by the scalar. That's why the name is given as scalar product, and the another technical name is dot product. Okay, now again coming to the point, हमें निकालना है एंगल. तो जो अपने पास, जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा. तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी? द वैल्यू ऑफ थीटा. तो cos थीटा का इक्वेशन क्या आ जाएगा अपने पास? cos थीटा विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एंगल निकालने में काम आती है. ओके, नाउ since we have already determined the a vector dot b vector and the magnitude of the given vectors a vector and b vector, we will directly put them. ठीक है. Okay, so it will be cos theta equals to a vector dot b vector. We get the value as 25, and the magnitude of a vector is square root 50, and the magnitude of b vector is square root 50. So the equation will be cos theta 25 upon, since it is square root 50 into square root 50, so it will be 50. The square root will be taken away. And since 50, 25 upon 50 is half, or we can say 1 by 2. Now the angle theta will be cos inverse half. अब cos inverse half का वैल्यू कितना होता है? आप इसमें उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी. cos थीटा की वैल्यू कब हाफ होगी? when the angle is 60 degree varies. Okay, so theta is 60 degree here. और अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 5/3 radians. So that's how we can find out the angle between the given two vectors by using the dot product of them. We can by finding out the dot product of them. And how do we use scalar product in the, we can say, physics? We use dot product as to get the work done. Work done is force into displacement. Okay, the dot product of force and displacement. And if the vectors are given, we can directly multiply them. So we can say we can do the dot product. And if their magnitudes are given, then what we can do? Magnitude of f vector into magnitude of displacement vector cos थीटा. अगर उसके बीच में एंगल दिया रहता है थीटा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं. और इस कॉन्सेप्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि जो फोर्स है उसका साइन क्या होगा, प्लस, सॉरी, जो वर्क डन है उसका साइन क्या होगा, प्लस, माइनस या जीरो. ये डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ कोस थीटा. ठीक है, अगर कोस थीटा आपके पास +1 है या फिर एनी प्लस वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू,
तो आपके पास वर्क डन भी क्या होगा, प्लस होगा। और कोस थीटा की वैल्यू, अगर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, अगर निगेटिव है तो आपके पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। और सिमिलरली अगर कोस थीटा की वैल्यू जीरो है तो आपके पास वर्क डन भी जीरो जूल आ जाएगा। और जो जीरो जूल का कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप कह सकते हैं कि वर्क डन, वो इस वाले केस में वर्क डन नहीं हुआ है क्योंकि फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच में हो सकता है, सॉरी, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। या कुछ अदर केसेस भी हो सकते हैं, जैसे फोर्स भी जीरो हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, देयर में बी एनी केस। ओके, बट इन द केस ऑफ एंगल इट वुड बी 90 डिग्री। Okay, okay, that's all from my side. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. I'll be happy to answer that. Thank you.